تو یوں کہیے کہ نون لیگ اور جنون کا مقابلہ اخلاقی حدیں اب پار کرنے لگا ہے۔ پھٹیچر پر جاری دونوں جماعتوں میں سیاسی کشیدگی اب مار کٹائی تک جا پہنچی ہے۔ قومی اسمبلی میں پھٹیچر کے تذکرے پر جاوید لطیف اور مراد سعید میں تکرار، ایوان کے باہر ہاتھا پائی میں بدلی۔ مراد سعید نے عوامی نمائندے کے بجائے باکسر کا روپ دھارتے ہوئے جاوید لطیف کو مکہ جڑ دیا۔ دیگر اراکین اسمبلی دونوں میں بیچ بچاؤ کراتے رہ گئے۔ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو ہمارے اتنے اچھے ممبر پہ۔ پھٹیچر کے تذکرے سے شروع ہونے والی لڑائی کا موقع پر اختتام۔ نہیں جان کے پھٹا کرنے والی بات ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پھٹیچر کے ریمارکس پر حکمران لیگ کے جاوید لطیف کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ عمران خان اور شیخ مجیب الرحمان کی تقاریر میں مماثلت کا حوالہ بھی دیا۔ پی ٹی آئی کے مراد سعید بھی کھڑے ہو گئے اور مسلسل بولنا شروع کر دیا۔ اسپیکر نے مائک بند کیا تو لابی میں چلے آئے۔ جاوید لطیف کو دیکھتے ہی طیش میں آ گئے۔ ایک ہی سوال دہراتے رہے کہ آپ غداری کا فتویٰ دینے والے ہوتے کون ہیں؟ ساتھی اراکین نے لاکھ سمجھایا، بیچ بچاؤ کرایا، لیکن مراد سعید نے جاوید لطیف کو مکہ جڑ کر ہی دم لیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزی پر اس مرتبہ ایکشن لیا جاتا ہے یا ماضی کی طرح بات آئی گئی ہو جائے گی۔ عوامی نمائندوں نے تکرار اور مکے بازی پر اپنی اپنی صفائیاں بھی پیش کی۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ ایوان میں ان کے قائد کو غدار کہہ کر گالیاں دی گئیں، جس پر وہ طیش میں آئے۔ دوسری جانب نون لیگ کے جاوید لطیف نے مراد سعید کو نابالغ بچہ قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہاتھا پائی کے بعد لفظی گولہ باری۔ تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید ہاتھا پائی کے بعد میڈیا کے سامنے آئے تو پنجاب میں پختونوں کے ساتھ نارمل سلوک کا شکوہ لے کر بیٹھ گئے۔ اس نے عمران خان کے حوالے سے، میرے حوالے سے، پختونوں کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے غداری کے فتوی بھی لگا دیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حکمراں لیگ کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نے کہا کہ انہوں نے تو محض مراد سعید کی تنقید کا جواب دیا تھا، وہ خواہ طیش میں آ گئے۔ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں گا تو اس کو کم از کم شرم آنی چاہیے تھی کہ اس طرح کی جو اس نے بیہیو کیا ہے۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، یہ بات تو تحقیقاتی کمیٹی ہی طے کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ جمہوریت کے حسن کو تشدد کے گہن سے بچانے کے لیے سیاسی جماعتیں کب تک خاموش رہیں گی؟ اور بدتمیزی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد نوٹس بھی لیا جائے گا۔ جی ہاں، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مراد سعید اور جاوید لطیف میں لڑائی کا نوٹس لے لیا۔ خورشید شاہ نے واقعے کی مذمت کر دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد اشتعال کو پاناما کیس سے جوڑنے لگے۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم آکسفورڈ کی ہے اور زبان لنڈے بازار والی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہاتھا پائی کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما محمد علی کی حکمران لیگ پر کڑی تنقید۔ اگر میاں جاوید لطیف صاحب کے جواب میں ہماری طرف سے کسی کو بولنے دیا جاتا، میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جب بھی ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب چیئر پہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا کہ ان کی تعلیم آکسفورڈ کی ہے اور زبان لنڈے بازار والی۔ نہ ان کے پارٹی جلسوں میں کوئی تعلیم اور تربیت نظر آتی ہے، وہاں پر عورتوں پر جھپٹتے ہیں، پارلیمنٹ پہ منسٹروں پر جھپٹتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سید خورشید علی شاہ نے اسپیکر قومی اسمبلی سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا اصرار تھا کہ یہ واقعہ پاناما لیکس کے رد عمل ہرگز نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا پارلیمنٹیرینز کی ہاتھا پائی پر اظہار برہمی، قصوروار کون تھا یہ جاننے کے لیے لابی میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ لاکھوں کے نمائندے آج کچھ پرتشدد ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ہدایت پر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہنگامے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اراکین کے درمیان ہاتھا پائی کی فوٹیج حاصل کی ہے۔ اسپیکر نے غوث بخش مہر کی سربراہی میں نئی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی میں تحریک انصاف اور نون لیگ کا کوئی رکن اسمبلی شامل نہیں۔ پارلیمنٹیرینز کی تحقیقاتی کمیٹی کو رپورٹ کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا گیا۔
अब कुछ बात करेंगे ऑपरेशन रद्दुल फसाद की। तो आपको बताएं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी खास नस्ल, फिरके या ग्रुप के खिलाफ नहीं, दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को कौम के साथ मिलकर शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है। कॉन्फ्रेंस में फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि न्यूज लीक्स का मामले पर भी ज़ेर गौर आया। रद्दुल फसाद दहशतगर्दों के खिलाफ है, किसी खास नस्ल, फिरके या गिरोह के नहीं, पाक फौज के सरबराह ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि रद्दुल फसाद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जामा इकदाम है। मुसल्लह फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, कौम के साथ मिलकर अमन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। कॉन्फ्रेंस में फौजी अदालतों की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान किया गया। न्यूज लीक्स का मामला भी ज़ेरे गौर आया, जबकि मर्दमशुमारी के मामलात पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। उड़ी हमले में मुलव्विस होने के बेबुनियाद इल्जामात पर भारत में फंसे पाकिस्तानी बच्चों को कल पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया ने कहा कि दहशतगर्दों के हालिया हमलों ने हमारे मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है और हमारे पास इस बात के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। Pakistan, while remaining committed to the avoidance of any kind of arms race in the region, will continue to take appropriate steps or measures to maintain strategic stability in the region. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तार किए गए फैसल हुसैन और एहसन खुर्शीद जुम्मे को पाकिस्तान पहुंचेंगे। उन्हें वागा या लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुक्काम के हवाले किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि कुलभूषण यादव का मामला भारतीय हुक्काम से उठा रखा है, ताहल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फसाद को तो रद्द होना ही है, तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, जिसने फसादियों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। टोबा टेक सिंह से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया, जबकि पेशावर, शक्करगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मशकूक अफराद पकड़े गए। असलहा बारूद भी बरामद हुआ। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों का घेरा तंग, शहर शहर ऑपरेशन में सैकड़ों गिरफ्तारियां। टोबा टेक सिंह में सिटी ने कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। समीउल्लाह और शहजाद नामी शिदत पसंदों से बारूदी मवाद बरामद। बलूचिस्तान के इलाके गाजी नाला में फोर्सेस का ऑपरेशन, करादम तंजीम के ठिकाने से 150 किलोग्राम बारूद और देसी साख्ता बम बरामद कर लिए। उधर चाही में FC ने कार्रवाई के दौरान 179 अफगान बाशिंदे पकड़ लिए। पेशावर के इलाके हज तंगरी और चमकनी में पुलिस की सैकड़ों घरों में चेकिंग, दर्जनों मुश्तबा अफराद धर लिए। बिहाड़ी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। ये कहते हैं हमने मना लिया, वो कहते हैं हम नहीं मानते। पार्लिमानी जमातें फौजी अदालतों में तौसीक के मामले पर मुत्तफिक न हो सकी। वजीर खजाना इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी को 2 साल की तौसीक के मुसवदे पर राजी करने का महज दावा किया, तो दूसरी जानिब से तरदीद आ गई। तहरीक इंसाफ तौसीक के मुसवदे पर मुत्तफिक न होने का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को ठहरा रही है। फौजी अदालतों का मामला, इसहाक डार का पीपल्स पार्टी को मना लेने का दावा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हुकूमती मुसवदा मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में फेंक दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों में सेशन जज बिठाने की तजवीज से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। उनके साथ जो बात हुई है वो उस पे उन्होंने उसमें दस्तबरदारी की और वापस ले ली। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमती मुसवदे से इत्तेफाक की बातें बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी ऐवान में अपना मुसवदा लाएगी। इसी बारे में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक नुक्ते पर इत्तेफाक किया, दीगर पर इख्तलाफात बरकरार रखे। नए आईनी मुसवदे में गड़बड़ नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ही करेंगे।
बात करेंगे दो टोक ऐलान की, तो आपको बताएं कि गुस्ताखाना मवाद ना हटाया गया तो सोशल मीडिया बंद कर देंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार का दो टोक ऐलान, कहते हैं तौहीन आमेज मवाद को हटाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब अदालत ने गुस्ताखाना मवाद वाली वेबसाइट फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि हसास मामले पर वजीर आजम को भी तलब कर सकते हैं। तौहीन अमेज मवाद ना हटाया गया तो सोशल मीडिया ब्लॉक कर देंगे। वजीर दाखिला की सदारत इजलास में फैसला। चौधरी निसार ने कहा कि गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। हसास मामलात पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और न ही प्रोपेगेंडे की इजाजत देंगे। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ थाना रिमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस शौकत सिद्दीकी फिर आबदीदा हो गए। सेक्रेटरी इत्तलात को तमाम गुस्ताखाना मवाद फौरी हटाने और वजीर आजम को भेजने का हुक्म दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने साफ साफ बता दिया कि मामले पर वजीर आजम को अदालत बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दूध बनाने वाली 19 कंपनीज के नमूने दोबारा टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अदालत ने इस्तेमाल शुदा तेल का इस्तेमाल न रोकने पर पंजाब फूड अथॉरिटी से इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि इस्तेमाल शुदा तेल का दोबारा इस्तेमाल कैंसर का सबब बन रहा है। अदालत ने मुसरे सेहत ऑयल फरोख्त करने वालों के खिलाफ जंगी बुनियादों पर कार्रवाई करने का हुक्म देते हुए फूड अथॉरिटी से 15 दिनों में रिपोर्ट तलब कर ली। और नाज़रीन, मुल्क भर के लेक्चरर्स के लिए अब खतरे की घंटी बज गई। 30 जून 2017 तक एमफिल मुकम्मल ना करो वरना घर जाओ। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम सरकारी और निजी जामियात को अहकामात जारी कर दिए हैं। इसकी तफसीलात क्या है, बताएंगे लाहौर से राशिद मंसूर। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की जामियात को पाबंद किया है कि आइंदा लेक्चरर्स की भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत 16 के बजाय 18 साल यकीनी बनाई जाए। बगैर एमफिल किए भर्ती होने वाले लेक्चरर्स को एमफिल कराया जाए या फिर उन्हें मुलाजमत से फारिग किया जाए। जराये का कहना है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर की सरकारी जामियात में 20,000 से जायद, जबकि निजी यूनिवर्सिटीज और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स में 16,000 से जायद लेक्चरर्स बगैर एमफिल तैनात हैं, जिनमें से 8% एमफिल अभी मुकम्मल कर रहे हैं। एचईसी ने लेक्चरर्स को एमफिल के दायरे में लाने के लिए तमाम जामियात को 30 जून 2017 तक की मोहलत दी है। राशिद मंसूर, नियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बताएं तो आज सिंध बहुत खुश है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सिंध पर खजाने के तो मुंह ही खोल दिए। ठट्ठा और सजावल के लिए करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। सूबाई हुकूमत से शिकवा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा तमाम मसाइल सिंध हुकूमत को हल करने चाहिए थे, लेकिन अब वफाक हल करके दिखाएगा। इंशाअल्लाह सिंध की तामीरें नौ करेंगे। क्या कहा मैंने? सिंध की तामीरें नौ करेंगे। ठट्टा में जलसे आम से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने की ठान ली। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया, ये भी कहा जो कह दिया वो करके भी दिखाता हूँ। इंशाअल्लाह हमने सिंध की महरूमियां उनको दूर करने का अज़म किया है। कोई और नहीं करेगा तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ठट्टा और सजावल के अवाम पर ऐसे मेहरबान हुए कि गैस, पीने के साफ पानी और सेहत कार्ड जारी करने के लिए करोड़ों का ऐलान कर दिया। बिजली देंगे इंशाअल्लाह, पानी देंगे, सड़कें देंगे, मोटरवेज देंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग के मसले को हल करने की यकीन दहानी तो कराई, लेकिन साथ ही बिजली के बिल वक्त पर अदा करने की नसीहत करते चले। और ठट्ठा में अवाम के जोशो खरोश ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खुश कर दिया। अवाम के नारों के जवाब में वज़ीर आज़म ने फरते जज्बात से आई लव यू टू कह दिया। मंसूबों का ऐलान करते हुए भी भरपूर अवामी अंदाज अपनाया। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ लेकर आया हूँ। रिवायती चादर और सिंधी टोपी, वज़ीर आज़म ने अपनाया अवामी अंदाज। वज़ीर आज़म ने अवाम की मोहब्बत का जवाब गर्म जोशी से यूं दिया, आई लव यू टू। गैस फराहमी पर कितने पैसे लगेंगे अवाम ना बता सकी तो वज़ीर आज़म ने यूं बताया, कोई लड़का नौजवान बताए कितने पैसे लगेंगे इस पर। 1 करोड़ रुपया, 110 करोड़ रुपया।
मंसूबों का ऐलान करके शराजी बरादरान से पूछा कि अब खुश हो। शराजी खुश है, ये मखलूक खुश है तो तू भी खुश हो जा। दूसरी जानिब मकली के शराजी हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए खाने का खास एहतमाम किया गया, जिसमें हिरन के गोश्त की डिशेस, बकरे की राने, मुर्ग और दीगर डिशें तैयार की गयी। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। इसे कहते हैं एक तो भूखे ऊपर से बदतमीज। शहर कायद में गोश्तखोर डकैतियों ने फिर फिल्मी काम दिखा दिया। कराची में एक और गोश्त की दुकान लुट गई। एक बार फिर वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज वाज़ेह शक्लें नजर आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है। रवां बरस 5 जबकि 13 माह के दौरान 44 गोश्त की दुकानों को लूटा जा चुका है। और वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ मुहिम जोर पर पहुंच गई। एम्प्रेस मार्केट और सदर के मुल्हका इलाकों में दर्जन भर से जायद पथारे हटा दिए गए हैं। मामला क्या था, कामरान सोहेल बताएंगे। वज़ीर आला सिंध ने हुक्म दिया, पथारे से पाक शहर चाहिए। एंटी इंक्रोचमेंट सेल हरकत में आया। सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तजावुजात का एक बार फिर खात्मा कर दिया गया। दर्जन भर से जायद पथारे हटा दिए गए, जबकि सामान भी जब्त कर लिया गया। अगर पुलिस का कोई बंदा इन्वॉल्व होगा या इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर शामिल है पथारे लगाने में या इनको सपोर्ट करने में, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। पुलिस का कहना है कि पुलिस इंक्रोचमेंट सेल की मदद के लिए हर जगह मौजूद होगी। ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में तजावुजात के खिलाफ मुहिम अक्सर औकात चलाई जाती है, लेकिन तजावुजात माफिया का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज, कराची। कराची का कचरा साफ करना सिंध हुकूमत का काम है। मेयर कराची ने हाथ खड़े कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मेयर ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि सफाई मुहिम में पूरे कराची को साफ करने का वादा हमने नहीं किया। ये तो सिंध हुकूमत का काम है। मैं तो अपने शहर के लोगों की वजह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, क्योंकि कराची के लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है। सिंध हुकूमत ने किया हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुकूमत सिंध के पास है। मैं तो इसलिए भाग दौड़ कर रहा हूं कि मेरा शहर है, मेरे लोग तंग आए हुए हैं। कराची के लोगों ने मुझे वोट दिया है एज ए मेयर, तो मैं निकल रहा हूं बाहर और सारी जगह कोशिश कर रहा हूं कुछ ना कुछ हो जाए। आला तरीन अदालत के अहकामात ना मानना जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बिलबोर्ड हटाने के लिए इंतजामिया को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। और तो और बिलबोर्ड्स के स्ट्रक्चर भी अब नहीं चलेंगे। कराची में अब भी बिलबोर्ड्स आवेजा हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जगह जगह बिलबोर्ड्स न सिर्फ शहर की खूबसूरती को मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि लोगों की जान के लिए खतरा भी बने हुए हैं। शहरी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई न किए जाने पर अदालत को जानो माल के तहफ्फुज के लिए इक़दाम उठाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को बिलबोर्ड हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। इससे पहले अदालती हुक्म पर पूरे शहर के आनन फानन बिलबोर्ड उतार लिए गए, लेकिन स्ट्रक्चर ताहाल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इंतजामिया की जानिब से बिलबोर्ड स्ट्रक्चर को हटाने का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज, कराची। अब कुछ बात मौसम की तो आपको बताएं कि बरसते बादलों के पंजाब के बेशतर इलाकों में डेरे बरकरार हैं। वादी कागान, तियाबर और मलका कोहसार मरी के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में पानी भरे बादलों का मटर गश्त, कहीं रिमझिम और कहीं मौसलाधार बारिश। इस्लामाबाद पर बादलों का राज रहा। लाहौर में आसमां पर छाए सियाह बादलों ने सूरज की एक न चलने दी। कभी बरसे तो कभी आराम किया। मलका कोहसार में बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। बारिश और 7 इंच बर्फबारी से माल रोड समेत गलियात की सड़कें बंद हो गयीं। इमदादी कार्रवाइयाँ ताखीर का शिकार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश होगी। बाज़ मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। वेलकम बैक। पाकिस्तान रेलवेज ने 11 ट्रेनों के किरायों में 5 से 10% इजाफा, जबकि 23 ट्रेनों के किरायों में 21% तक कमी कर दिया है। किरायों में रद्दोबदल का इतलाक 15 मार्च 2017 से होगा।
ट्रेन लाइन का लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1510 से कम करके 1200 रुपए कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस के किराए में इजाफे की तजवीज को 25 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं कि सिंध असेंबली के ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान गर्मा गर्मी मामूल बन गई। इजलास में तहरीके मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और वॉकआउट किया। ख्वाजा इसहार ने सीढ़ियों पर असेंबली लगाने और अदालत जाने की धमकी दे दी। कहते हैं कि कोई खुशफहमी में ना रहे, एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई। सिंध असेंबली में एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुत्तहिदा की तहरीकें मुस्तरद होने पर ऐवान का माहौल गर्म। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर शहला रजा की जेर सदारत इजलास में मुत्तहिदा रुकन की तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी गई, जिस पर एमक्यूएम अरकान ने सीढ़ियों पर असेंबलियां लगाने और अदालत जाने की धमकी दे दी। रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, हम उसके लिए फिर असेंबली में एहतजाज करेंगे। डिप्टी स्पीकर शहला रजा का कहना था कि स्पीकर को अपने चेंबर में किसी भी तहरीक को मुस्तरद करने का इख्तियार हासिल है। स्पीकर अपने चैम्बर में जो है इसको अगर वो समझते हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है तो इसको डिसअलाउ कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार हसन का कहना था कि अवामी इशूज पर हमारी तहरीकें मुस्तरद की जा रही हैं, अब अवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों पर होने चाहिए। मेरी सिंध की अवाम से भी गुजारिश है, आपने वोट दिया है, आपका हक है कि आप इनके गिरेबानों पे अपने हाथ डालें। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि कोई इस खुशफहमी में न रहे कि मुत्तहिदा का मैंडेट तस्लीम हो गया है। सिंध असेंबली के बाद अब कुछ बात करेंगे पंजाब असेंबली की। स्पीकर पंजाब असेंबली के नारवा सलूक के खिलाफ अपोजिशन ने ऐवान के बाहर एहतजाज किया। पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर न सिर्फ अलामती इजलास किया बल्कि स्पीकर के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली का इजलास हस्बे मामूल 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ तो पीटीआई के रुकन खुर्रम शहजाद ने कोरम की निशानदेही की, जिस पर इजलास की कार्रवाई रोक दी गई। अपोजिशन जमातों ने एहतजाजन पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर इजलास शुरू कर दिया। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह स्पीकर पंजाब असेंबली के दिफा में बोले कि अपोजिशन के खिलाफ स्पीकर का रवैया दुरुस्त था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल का लाहौर में कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से सियासी इंतजामी और सिक्योरिटी टीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 5 मार्च को PSL फाइनल का कामयाबी से इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। खदशात के बावजूद मुशावरत से फाइनल मैच कराने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिमायत भी हासिल रही। इस मौके पर चेयरमैन PCB शहरयार खान का कहना था कि शहबाज शरीफ जैसा लीडर ही PSL का फाइनल करा सकता था। और खेल के मैदान से खबर यह है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए 31 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कामरान अकमल, अहमद शहजाद और उस्मान शनवारी ने वापसी की है, जबकि मोहम्मद इरफान और जुल्फिकार बाबर कौमी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। इब्राहिम बादेस। मेरे ख्याल में पाकिस्तान प्लेयर्स को ऑक्शन में नहीं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की सरबराही में कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा वेस्ट इंडीज के लिए 31 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। 9 खिलाड़ी पहली दफा पाकिस्तान टीम के कैंप में शामिल होंगे। तरबियती कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, कामरान अकमल, जुनेद खान, उस्मान शनवारी, बाबर आजम शामिल हैं। मोहम्मद इरफान और जुल्फिकार बाबर सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए तरबियती कैंप 11 से 17 मार्च तक कजाफी स्टेडियम में होगा। इब्राहिम बादेस, न्यू न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच नहीं होंगे। जावेद आफरीदी के साथ साथ कोलकाता के हुकाम ने भी तरदीद कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी और इंडियन प्रीमियर लीग की अहम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैचेस नहीं होंगे। मीडिया पर दोनों टीमों की सीरीज की खबरें चलने के बाद तरदीद सामने आ गई। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी ने ट्वीट किया कि वो अमन के लिए क्रिकेट के हामी हैं, लेकिन ज़ल्मी और नाइट राइडर्स में मैच की खबरों में कोई हकीकत नहीं। उधर भारतीय T20 लीग IPL की 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्विटर पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया कि KR इंतजामिया के मुताबिक उनकी टीम के किसी दूसरे मुल्क की टीम के साथ मुकाबलों की खबर बेबुनियाद है।
कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक के जारहाना अंदाज से मुतालिक आपको बताएं कि हांगकांग T20 लीग में सिर्फ 37 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 82 रन बनाकर अपनी टीम आइलैंड यूनाइटेड की फतह में अहम किरदार अदा किया। It's hammered away from Misbah Haq. Yes, it is. That's for backs away and managed to thread it through the gap. That'll be four plus. There we go. Commentator's curse bangs into the side screen. Pretty much every team he's faced. Flick off. Goes for the lap shot and he gets away with it. Is that going to go all the way? Oh, I think that one is gone. यहाँ आपको अपडेट करेंगे शहीद एसएसपी चौधरी असलम के गनमैन कामरान से मुतालिक तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नॉर्थ कराची में कार्रवाई। चौधरी असलम के गनमैन कामरान की अहलिया और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, कामरान केस के हवाले से जो पुलिस के कार हैं उन्होंने नॉर्थ कराची में छापा मारा है। वहां से कामरान की अहलिया और दो भाइयों को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया है। जराये का कहना है कि चौधरी असलम के ड्राइवर कामरान का जो दोनों भाई हैं ये महकमा पुलिस में भर्ती हुए थे शहीद कोटे पे और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके इनसे कामरान के हवाले से तफ्तीश की जा रही थी। कामरान के जो मोबाइल फोन का डेटा था उसमें जो जिनके नाम शामिल थे उनके सिंह से रवाबित थे, तो तफ्तीश कर दिया गया। इन तमाम जो कार्रवाई को इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। अहम खबर से आपको आगाह करें, कश्मीर में बच्चों की शहादतों ने तहरीक आजादी को रूज पर पहुंचा दिया। नवी जमात का तालिब इल्म नजीर वानी और नौजवान जलालुद्दीन भी मादरे वतन की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। पुलवामा में होने वाली झड़प में हुर्रियत पसंद भी शहीद हो गए। एक के बाद एक खून की कुर्बानी दे रहे हैं कश्मीर के नौजवान और आज भी 2 शहीद हो गए। दुश्मनी का भी कोई स्टैंडर्ड होता और खपत का तो कोई इलाज ही नहीं। भारतीय फौजी जवानों में बेचैनी और नफसियाती दबाव अपने अरूज पर पहुंच चुका है। 2 हफ्तों में 3 फौजियों ने खुदकुशी कर ली। बलराज सिंह की लाश पूंछ के इलाके सोरनकोट से मिली। बलराज ने अपनी राइफल से खुद को गोली मारी। भारतीय फौजी नफसियाती दबाव का शिकार हैं। और कोयटा की बासलाहियत आर्टिस्ट उज़मा दुरानी के तैयार करदा इस्लामी खताती के फन पारे नुमाइश के लिए सजाए गए, जिसने हर देखने वाले को लगता था अपने शहर में जक लिया। रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah। बचपन से रंगों से मोहब्बत करने वाली इस खतात ने ऑयल पेंटिंग की मदद से कुरानी आयात को कैनवस पर इस खूबसूरती से मुंतकिल किया कि देखने वालों की आंखों को खीरा कर दिया। उज़मा पेन की निब को स्याही में डिबोकर अल्फाज को कागज पर तहरीर करने का लाजवाब हुनर भी रखती है। यही वजह है कि इसे बलूचिस्तान की पहली खातून खतात होने का भी एजाज हासिल है। अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया कि मैं बलूचिस्तान की तरफ से आज पहली लड़की हूँ, तो ख्वाहिश है बिल्कुल है, मैं अपने आप को बहुत नाचीज समझती हूँ। नुमाइश के शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर फन खताती की बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं। जरूरत तो सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती की है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ बुशरा कमर, न्यू कोयटा। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। सदारती अवार्ड याफ्ता 2 गुलकार उस्ताद पठाने खान को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए। मुल्तान से कैसर नवाज भुट्टा की रिपोर्ट देखते हैं। लोक फनकार पठाने खान 1920 में कोट अद्दू के नवाही इलाके सिनावा के गांव तब्बूवाला में पैदा हुए। पठाने खान ने ख्वाजा गुलाम फरीद, सच्चल सरमस, शाह हुसैन, वारिस शाह, सुल्तान बहू के अलावा सूफिया कराम के आरफाना कलाम गाकर आलमी शोहरत हासिल की। पठाने खान को 80 से ज्यादा कौमी अवार्ड दिए गए। पठाने खान के बेटे इकबाल पठाने खान और उनके वाहिद शागिर्द मोहम्मद नवाज भुट्टा अपने उस्ताद के फन को जारी रखे हुए। बजे अल्लाह वाली तार, बजे मुर्शिद वाली तार, बजे साइया वाली तार। कैमरामैन फयाज वाहका के साथ कैसर नवाज भुट्टा, न्यू न्यूज मुल्तान। अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आपको हम छोड़े जा रहे हैं बेसब्र शुतुरमुर्गों के साथ। देखिए वो खुराक पर कैसे टूटे।